Hello everyone, welcome to my ओरायन यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे ओरायन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो इन प्रीवियस लेक्चर we have discussed a data structure and algorithms. So which are those? First one is list, tuples, sets, and fourth one is dictionary. Now in today's lecture we are going to see the control flow statements in Python. Fine. So what are the control flow statement? What are the control flow statements? Basically statements that allow a program to make decision, find, or to do repeat tasks and change the normal execution sequence which is based on the condition. फाइन। सो जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं यह हम लोग डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट हमें अगर कोई कोड या फिर कोई प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना हो, सो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। सो इन सिंपल वर्ड, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स controls the flow of execution. Fine. It controls the flow of execution of a Python program. Understood? Okay. So second thing is that why are control flow statements used? Why are control flow statements used? So basically it helps to make decision based on the condition. Second one is it execute different block of code for different situation. Fine. And third one is it repeat a set of instructions. Fine. Fourth is it avoid writing repetitive code. Fine. सो इन सभी वजह से हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। गॉट इट? ओके। सो सर, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? सो देखिए फ्रेंड्स, जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स होते हैं यह मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ selection statement. Second one is iteration statement.
third one is jump statement. फाइन. सो इन सिलेक्शन स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे इफ़ क्या होता है, इफ़ एलिफ क्या होता है एंड इफ़ एलिफ एल्स. फाइन. नाउ इन आइटरेशन हम लोग पढ़ेंगे लूप्स के बारे में. फर्स्ट होता है फॉर लूप, सेकंड होता है व्हाइल लूप. अंडरस्टूड. एंड देर आर फ्यू जंप स्टेटमेंट्स. सो विच आर दोज? फर्स्ट वन इज ब्रेक, second one is continue, and third one is pass. Fine. So one by one we are going to cover these all control flow statements. Got it? Okay. So first and foremost the thing is we need to learn how do control flow statement work. How do control flow statements work? So first we need to check the condition. हम लोग कंडीशन चेक करते हैं. फाइन. देन वी मेक decisions that the condition is true or false. Fine. Then we are repeating a block of code. Fine. Then the last step is to jump on the another part of program. Jumping to another part. Sorry. Jumping to the another part of program. Fine. Thus, they control the path that the program follows. Understood? So in this way, we are going to execute the code. Understood? Fine. So the first control flow statement is selection statement. So now see here. First one is selection statement. So before understanding this selection statement, we need to understand what is an indentation. So indentation क्या होता है? Basically indentation is nothing but a gap. Suppose this is my Colab cell, Google Colab का सेल, जहाँ पर में हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे रन का बटन होता है. ठीक है. इस गूगल कोलैब के सेल में सिंपली हमें यहाँ कोड लिखना होता है. फॉर एग्जांपल x = 7. सो जो भी हमने यहाँ पर में ये गैप क्रिएट किए हैं, अगर आप गूगल कोलैब के सेल में यह टाइप करोगे इन फ्यू गैप x = 7, तो यहाँ पर में इस गैप को हम लोग कहेंगे इंडेंटेशन. फाइन. सो जब भी हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट लिखते हैं, फाइन, जब भी हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो होता है सिलेक्शन, इफ़ एलिफ, इफ़ एल्स ये लिखते हैं, तो उस दौरान हमें इस गैप का बहुत ख्याल रखना होता है. ठीक है. ओके. सो देखिए, अगर मैं लिख दूँ इन सेकेंड सेल y = वेट
y इज इक्वल टू 6 एंड z इज इक्वल टू 8। और हमने यहाँ पे कर दिया x विच इज इक्वल टू y प्लस z। बट यहाँ पर में जो गैप आया है इसे हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। फाइन। सो जब भी हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे इफ़ एल्स सो एट दैट टाइम हम लोग इस इंडेंटेशन को साथ लेके चलते हैं। फाइन। सपोज़ अगर मुझे किसी सेल में कोड लिखना हो दैट इज़ x विच इज़ इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 7। फाइन। और मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ यूज़ करके इफ़ यस x इज इक्वल टू 1 देन कोलन। जैसे हम लोग यहाँ पर में कोलन लिखते हैं तो वैसे हम लोग यहाँ पर में करते हैं एंटर। जैसे एंटर का बटन हम प्रेस करते हैं तो जो हमारा कर्सर होता है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फाइन। यहाँ पर कुछ गैप आ जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। ओके। सो बाय डिफ़ॉल्ट इस कोलन के बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और यहीं से हमें आगे फिर नेक्स्ट कोड लिखना होगा। हम लिखेंगे देन प्रिंट। ओके। फाइन। एल्स अब हम लोग लिखेंगे एल्स अगर x 1 नहीं है ना, अगर हमारा x 1 नहीं है तो हम लोग प्रिंट करेंगे मैसेज x इज़ नॉट 1। फाइन। ओके। सो हमने क्या किया यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया इफ़ एंड एल्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हमें अंदर जंप करना है और चेक करना है हमें क्या परफॉर्म करना है। फाइन। इफ़ यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो तो हम लोग एल्स में जंप करेंगे। ओके। सो ये होता है इफ़ एल्स। अंडरस्टूड। ये तो हो गया सर दो कंडीशन के लिए। फर्स्ट वन इज़ x इज इक्वल टू 1 है क्या, अगर है तो ये करिए वरना ये करिए। अगर मेरे पास में 3 कंडीशंस हो, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट, अगर हम लोग कहेंगे लाइट विच इज़ इक्वल टू ग्रीन। फाइन। अब मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ लाइट विच इज़ इक्वल टू रेड, देन हमें क्या प्रिंट करना है, स्टॉप। फाइन। अब हमें चेक करना सेकंड कंडीशन, इफ लाइट विच इज़ इक्वल टू ऑरेंज, दे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं रेडी। फाइन। एल्स, जो एल्स नहीं, यहाँ पे हम लोग लेंगे एलिफ लाइट इज इक्वल टू ग्रीन है तो हमें करना मैसेज प्रिंट गो। अंडरस्टूड। सो ये होगी मेरी फर्स्ट कंडीशन, ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन और ये होगी हमारी थर्ड कंडीशन। फाइन। सो जब सिंगल कंडीशन हो तो हम लोग इफ़ यूज़ करते हैं, जब मोर देन 2 कंडीशन हो तो हम लोग एलिफ यूज़ करते हैं। फाइन। या फिर मोर देन 1, और लास्ट में हम लोग यूज़ करते हैं एल्स। अगर लाइट रेड है तो स्टॉप करना है, लाइट ग्रीन है तो रेडी करना है, सॉरी ऑरेंज है तो रेडी करना है, ग्रीन है तो गो करना है। बट अगर रेड ऑरेंज और ग्रीन ना हो, सपोज हो ब्राउन, सो हम क्या करेंगे बताइए, एल्स। हम लोग प्रिंट करेंगे मैसेज नन। गॉट इट। सो जैसे हम लोग इसे रन करेंगे, जो हमारा लाइट ग्रीन है इस अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा गो।
यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम इस तरीके से, एंटर होगा, चेक होगा, लाइट रेड है क्या, नहीं है तो ये रन नहीं होगा। देन चेक करेगा एलिफ लाइट ऑरेंज है, नहीं है। देन चेक करेंगे लाइट ग्रीन है, हाँ है, सो हम लोग प्रिंट करेंगे गो, और यहाँ पे आ जाएगा एग्जिट गो। फाइन, सो इस तरीके से, सो इन दिस वे इफ एलिफ एंड एल्स वर्क करता है। अंडरस्टूड? ओके, सो ये रहा हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट। फाइन, जिसे हम लोग कहते हैं इफ एलिफ एल्स। गॉट इट? ओके, सो चलिए अभी हम लोग देखते सेकंड एग्जांपल। सपोज आई वांट टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। फाइन, तो सिंपली हम लोग एक नंबर इनपुट लेंगे। सपोज एक्स से हमने नंबर इनपुट लिया, इनपुट एंटर द नंबर। फाइन, देन हम लोग चेक कर रहे हैं इफ एक्स मॉडुलस डिवीजन 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, बिकॉज हमने मॉडुलस यूज़ किया है ना। ये क्या होता है मॉडुलस, MODU, ये मॉडुलस जो हमें देता है रिमाइंडर। ओके, इफ एक्स विच इज इक्वल टू 2, इफ एक्स मॉडुलस 2 विच इज इक्वल टू 0, तो हम लोग कहेंगे, प्रिंट करेंगे मैसेज इट इज़ इवन। फाइन, एल्स हम लोग प्रिंट करेंगे ऑड, बिकॉज जब भी हम लोग एल्स यूज़ करते हैं तो उस समय पे हमें जो कंडीशन पास नहीं करनी पड़ती है, विदाउट कोई कंडीशन के हम लोग एल्स यूज़ करते हैं। फाइन, और जब भी हम लोग इफ़ का यूज़ करेंगे तो जब इफ़ के दौरान हमें कंडीशन पास करनी होगी, या फिर हम लोग एलिफ यूज़ करते हैं तो एलिफ के दौरान भी हमें कंडीशन पास करनी होगी। अंडरस्टूड? बट द थिंग इज दैट व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ एल्स, सो एट दैट टाइम देयर इज़ नो नीड टू गिव एनी कंडीशन। फाइन, ओके, सो हम लोग इसे करेंगे एग्जीक्यूट। जैसे ही इसे हम लोग रन करेंगे, सो यहाँ पर भी हमारे से पूछेगा एंटर द नंबर, मैसेज प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? एंटर द नंबर। फिर हम लोग नंबर एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 24। देन यहाँ पर हमें एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, सो यहाँ पे अंदर में इस x की वैल्यू हो जाएगी 24। जैसे ही इसमें x की वैल्यू 24 हो गई, यहाँ पे चेक होगा क्या 24 2 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्रिंट करो और इवन। फाइन, अगर नहीं आ रहा होता तो हम लोग प्रिंट करते ऑड। गॉट इट? सो इन दिस वे हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं फॉर चेकिंग एनी कंडीशन। अंडरस्टूड? ओके, now understand the advantages of control flow statement. Fine, so advantages of control flow statements. Fine, first one is it makes program intelligent. It makes the program intelligent. Second one is it reduce code duplication. Fine, reduce code duplication. Third one is it improve readability. It improves the code readability. And fourth one is it saves development time.
it saves development time. Fifth one is makes program flexible and efficient. It makes the program flexible and efficient. So these all are the advantages of control flow statement. But along with the advantages, there might be disadvantages. Fine, there may be a disadvantages. So first disadvantages of control flow statement is excessive nesting can reduce readability. Fine. Excessive nesting can reduce readability. इसका मतलब होता है जब भी हम लोग इफ़ यूज़ करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स. फाइन. सो जैसे हम लोग नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करेंगे, सो देन एंड देन ओनली ये हमारा रिपीटेटिव टास्क रिड्यूस करता है. अंडरस्टूड. देन सेकंड वन इज इनकरेक्ट कंडीशंस में प्रोड्यूस लॉजिकल एरर. Incorrect condition may produce logical error. Got it? Third one is complex control flow can make debugging and more difficult. Fine. And we can also say that infinite loops may occur if loop conditions are incorrect. Fine. इनफाइनेट लूप्स ऑकर होते हैं कब? इफ लूप कंडीशन आर इनकरेक्ट. गॉट इट? सो these are the disadvantages and these all are the advantages of control flow statements. Fine. Then what are the real time applications of control flow statement? So बताइए मुझे रियल टाइम एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज जो हमारा एटीएम मशीन होता है, एटीएम मशीन ट्रांजेक्शन का जो कोड होता है वो हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. फाइन. देन ऑनलाइन शॉपिंग जो हम लोग करते हैं चेकआउट, सो एट दैट टाइम हम लोग कंडीशन का यूज़ करते हैं जिसमें हमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोड रिटर्न करना होता है. थर्ड वन इज़ बैंकिंग एप्लीकेशन में काम आता है, जैसे कि मैंने आपसे बताया था एटीएम मशीन के लिए, ठीक है, या फिर जो बैंक में होते एप्लीकेशंस उनमें यूज़ होता है. देन ट्रैफिक सिग्नल में यूज़ होता है. जो ट्रैफिक सिग्नल कोड होता है सो वह इस इफ़ एल्स कॉन्सेप्ट को यूज़ करके लिखा गया है. ओके. देन जो गेम डेवलप्स होते हैं उसमें भी हम लोग कंडीशंस अप्लाई करते हैं. फाइन. सो दिस ऑल आर द रियल टाइम एप्लीकेशंस ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. सो फ्रेंड्स, लेट्स रिवाइज सी दिस. सो हमने आज देखा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमने जाना कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है. आफ्टर डैट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हमें यूज़ क्यों करना है. देन द टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज सिलेक्शन, सेकंड वन इज आइटरेशन, थर्ड वन इज जंप स्टेटमेंट. फाइन. एंड हाउ डू कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वर्क्स. फाइन. हमने इसका वर्किंग भी देखा है. देन इंडेंटेशन क्या होता है, हमने इस कॉन्सेप्ट को जाना है. फाइन. देन हम लोग इफ एल्स यूज़ कैसे करते हैं, मैंने आपको दो एग्जांपल लेके बता दिया है. फाइन. आफ्टर दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स. फाइन. देन अलॉन्ग विद द एडवांटेजेस देयर आर few disadvantages.
and these all are the real-time applications. Fine. So friends, let's see the practical implementation of the control Hello flow friends, statement. Okay, let's see the practical so of control let's flow see. statement. First of all, I will show you how indentation works. Fine. So indentation क्या होता है? जैसे मैंने आपसे बताया था, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल टाइप कर रहे हैं, फाइन, एंड इनटू दिस वेरिएबल आई एम असाइनिंग सम वैल्यू, फाइन, बट जब मैं नेक्स्ट वेरिएबल असाइन करूँगा var2 विच इज़ इक्वल टू 5, सो देखिए यहाँ पर मैं इन फ्रंट ऑफ var2 there is some gap, फाइन, there is some space. सो जो गैप होती है, जो ये स्पेस होता है, इसे हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन. फाइन. सो सी हियर, अगर मैं नेम विच इज़ इक्वल टू कैप्टन एक स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ, फाइन, यह स्ट्रिंग हम लोग इस नेम वेरिएबल में पास कर रहे हैं. सो देखिए, बिफोर दिस नेम आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यह जो डॉट डॉट आ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन. फाइन. सो जब भी हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के कोड राइट करेंगे, फाइन, जब भी हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के कोड रिटर्न करेंगे, सो एट दैट टाइम हमें इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना होगा. ठीक है. सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. सो हम लोग if यूज़ करते हैं, देन elif यूज़ करते हैं, एंड along with that else यूज़ करते हैं. Got it? Fine, fine. So see, suppose there is a traffic light having 3 colors, red, green and orange. Fine. So अगर रेड लाइट ब्लिंक हुआ है तो हमें स्टॉप प्रिंट करवाना है, अगर ग्रीन होगा तो गो करवाना है, एंड फॉर ऑरेंज हमें रेडी प्रिंट करवाना है. सो देखिए, सिंपली वी आर गोइंग टू यूज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स विच कंटेन्स इफ, elif एंड एल्स. सो हाउ इट वर्क्स, सी हियर. इफ लाइट विच इज़ इक्वल टू ग्रीन, अगर लाइट हमारा ग्रीन है तो हम लोग प्रिंट कराएंगे गो. फाइन. elif light which is equal to red, then I am printing here stop. Understood? And elif light is orange, then simply print here ready. फाइन. बट जो हमने यहाँ पर में लाइट कंपेयर किया है, डेट इज़ ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज. सो यहाँ पे हम लोग लाइट की एंट्री एज ए इनपुट लेंगे. इनपुट enter the status of signal, whether it is green, red or orange. फाइन. अगर किसी ने ग्रीन, रेड, ऑरेंज के बियॉन्ड कोई लाइट एंटर किया है, सो इस फॉल्स इनपुट के लिए हम लोग मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, एंटर दी appropriate status of light. Got it? So see here, I am going to execute this.
सो रन हो रहा है, ठीक है। सो देखते हैं क्या हो रहा है। हो गया रन, ओके फाइन। सो सिंपली आई एम एंटर हियर ग्रीन, ओके। आ गया मैसेज ग्रो, गो यस। सो इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली रिटर्न द कोड फॉर द ट्रैफिक लाइट। फाइन, नाउ आई एम ट्राइंग ऑरेंज, एंटर, रेडी, फाइन। सो इन दिस वे दिस कंट्रोल स्टेटमेंट्स वर्क्स। जब भी हम लोग इफ यूज़ करते हैं तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन देते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमें ये करना है, अदरवाइज ये करना है, अदरवाइज ये करना है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो तो एल्स करना है। गॉट इट, ओके। नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज चेक द नंबर वेदर इट इज इवन और ऑड। अभी हम लोग नंबर चेक करेंगे वह एंटर्ड नंबर इवन है या ऑड है। फाइन, सो सी हियर, सिंपली आई एम टेकिंग नंबर एज ए इनपुट। फाइन, नंबर एज ए इनपुट, इनपुट, एंटर द नंबर, ओके। टेक हियर इंटीजर, बिकॉज हमें नंबर प्रिंट करवाना है, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी है हमारे कीबोर्ड से। डेट्स वाई वी आर यूजिंग इंट फंक्शन। फाइन, ओके। अभी हमें चेक करना है वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। अब मुझे बताइए, जो इवन नंबर्स होते हैं वह कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 होते हैं। फाइन, अगर हम लोग किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 0 आता है ना। हाँ, सो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग यूजिंग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इवन या ऑड नंबर चेक करने का कोड लिखेंगे, ठीक है। सो देखिए, इफ एंटर्ड नंबर इज मॉडुलस 2 विच इज इक्वल टू 0, मतलब जो मैं नंबर इनपुट लूँगा अगर उसे हम लोग मॉडुलस 2 कर देंगे और चेक करेंगे क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो सिंपली प्रिंट नंबर इज इवन। फाइन, एल्स प्रिंट करो मैसेज that number is odd, okay। so let's check, run this। suppose I am taking 4 as input, so क्या 4 even number है? yes, number is even। fine, now check for odd, run this, type 3, enter, then the number is odd। फाइन, सो इन दिस वे हम लोग इफ एल्स का यूज़ करके वेदर द नंबर इज इवन या फिर ऑड चेक कर सकते हैं, ओके। फाइन, चलो, तो फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा है ट्रैफिक लाइट का, अंडरस्टूड। traffic light, fine, then the number is even or odd। अभी हम लोग बनाएंगे कैलकुलेटर। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट कैलकुलेटर यूजिंग इफ एल्स। अभी हमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यह 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, राइट। सो सी, जब मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा तो सबसे पहले हमें 2 नंबर एज ए इनपुट लेने होंगे। फाइन, अलॉन्ग विद डैट प्लस करना है, माइनस करना है,
सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, यह भी हमें एज ए इनपुट लेना होगा यूज़र के थ्रू। फाइन, सो लेट्स टेक द इनपुट ऑफ टू नंबर्स अलॉन्ग विद द ऑपरेटर्स। सो सर ऑपरेटर क्या होता है? तो बच्चों, फ्रेंड्स, मैंने आपको पाइथन के आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर में ऑपरेटर्स के बारे में बताया है। सो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर का रेफर ले सकते हो फॉर लर्निंग द ऑपरेटर्स। फाइन, सो ऑपरेटर्स इज नथिंग बट अ सिंबल, इट इज अ ऑपरेशन दैट वी आर परफॉर्मिंग ऑन द ऑपरेंड्स। अगर मैं कह दूँ आपसे 2 + 4, तो 2 और 4 यहाँ पर में हो गए ऑपरेंड्स एंड प्लस इज ऑपरेटर। गॉट इट? ओके, सो अभी हमें बनाना है कैलकुलेटर। तो सिंपली हम लोग लेंगे 2 नंबर एज ए इनपुट। सो नंबर फर्स्ट विच इज इक्वल टू इंटीजर होगा, यूजर के थ्रू हम एंटर करेंगे नंबर को, दैट्स वाई आई एम टेकिंग इनपुट। एंटर द नंबर, फाइन, एंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, राइट। नाउ अभी हमें यूजर के थ्रू ऑपरेटर लेना है। फर्स्ट नंबर हमने एंटर कर दिया, सपोज 2। फाइन, सपोज हमने यहाँ पर मैं एंटर कर दिया 2, और अभी हमें करना है प्लस। सो हम लोग इनपुट एज अ ऑपरेटर लेंगे, OPERATOR, ऑपरेटर विच इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द सेकंड नंबर। गॉट इट? हो सकता है ये ऑपरेटर डिवीजन हो, मल्टीप्लाई हो, माइनस हो, प्लस हो। फाइन, ओके, देन num2 which is equal to int input, enter the operation, enter the second number. Fine, ओके, सो सपोज सेकंड नंबर होगा 6। अगर मैं 2 + 6 करूँ तो 8 होना चाहिए। फाइन, सो कैलकुलेटर बनाने से पहले हमें यूज़ करना होगा इफ एल्स का। सो देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे ऑपरेटर, बिकॉज नंबर तो हमने इनपुट ले लिए है। अभी हम लोग ऑपरेटर के अकॉर्डिंग इफ एल्स यूज़ करेंगे। सो देखिए, इफ ऑपरेटर विच इज इक्वल टू प्लस, देन हमें क्या करना है बताइए? प्रिंट नम फर्स्ट प्लस नम सेकंड। गॉट इट? हो गया। वैसे ही इफ ऑपरेटर विच इज इक्वल टू माइनस, then print num first minus num second, बट यहाँ पर मैं आएगा एलिफ। फाइन, बिकॉज हम लोग सेकंड कंडीशन चेक कर रहे हैं ना, डेट्स में हम लोग यूज़ करेंगे एलिफ, और थर्ड कंडीशन चेक करनी हो तब एलिफ यूज़ करेंगे। जस्ट हम लोग इफ़ यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में और एल्स यूज़ करते हैं एंडिंग में। फाइंड, और जितने भी बीच में कंडीशंस आएगी तो उस दौरान हम लोग यूज़ करेंगे एलिफ का। ओके, एलिफ ऑपरेटर अगर हो मल्टीप्लाई, देन प्रिंट नम फर्स्ट इनटू नम सेकंड। गॉट इट? फाइन, एलिफ ऑपरेटर होगा डिवीजन का। सो मैं अगर सिंपली यहाँ पर मैं नम फर्स्ट डिवाइडेड बाय नम टू कर दूँ और इसी किसी वेरिएबल में स्टोर कर दूँ यह वैल्यू। फाइन, और इसे मैं प्रिंट कर दूँ।
इस x को। तो मुझे बताइए, अगर नंबर 2 0 रहा तो वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, बिकॉज एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। बट जो एरर आ रहा है सर, सो अभी हम लोग यहाँ पर में इसे हैंडल करेंगे। सो हैंडल कैसे करेंगे, देखिए, इफ num2 नॉट इक्वल टू 0, अगर num2 0 नहीं है तो ही हमें यह ऑपरेशन परफॉर्म करना है डिवीजन का। अंडरस्टूड। एल्स अगर 0 है नंबर सेकंड तो हमें करवाना मैसेज प्रिंट, प्लीज एंटर द appropriate डिनोमिनेटर। गॉट इट। ओके, सो देखिए लास्ट में हम लोग एल्स यूज़ करेंगे, बिकॉज अगर ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बियॉन्ड कोई रहा तो हमें एल्स में वह मैसेज प्रिंट करवाना होगा। हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे मैसेज, एंटर दी ऑपरेटर्स जो हो गए हमारे डिवीजन कॉमा मल्टीप्लिकेशन कॉमा माइनस कॉमा प्लस। फाइन। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम लोगों ने बना दिया कैलकुलेटर। सिंपली हमने यहाँ पर 2 नंबर एज इनपुट लिए है और ऑपरेटर भी यहाँ पर इनपुट लिया है। फाइन। देन हम लोगों ने ऑपरेटर पे कंडीशंस लगाई है। अगर मेरा ऑपरेटर प्लस है तो हमें प्लस करवाना है 2 नंबर के बीच, अगर ऑपरेटर माइनस है तो माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन करवाना है, ऑपरेटर अगर डिवीजन है तो डिवीजन करवाना है। बट डिवीजन कब होगा, जब मेरा नंबर सेकंड 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। फाइन। और अगर है तो हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे। गॉट इट। सो लेट्स चेक, इसे हम लोग रन कर रहे हैं अभी, ठीक है। देखिए हो गया रन। हमारे से पूछ रहा है ये फर्स्ट नंबर 2, एंटर द ऑपरेशन, प्लस करना है हमें, 2 + 4 6। Got it? Yes. Now again run this. 8. Suppose I am taking 8. 8 minus 5. 3. हो गया रन। Now check for the multiplication. 4 multiply by 3. 12. Got it. Check for the division. Suppose I am taking 5 as a first number. ऑपरेशन होगा डिवीजन, और मैं यहाँ पर सेकंड नंबर ले रहा हूँ 0, तो क्या होगा, प्रिंट प्लीज़ एंटर द एप्रोप्रिएट डिनोमिनेटर, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 होगा तो एरर आएगा, बिकॉज वैल्यू इन्फिनिटी आती है ना। बट हम लोग अभी इस 0 को यूज़ कर रहे हैं एज अ सेकेंड नंबर, तो देखिए क्या प्रिंट होगा, प्लीज़ एंटर द एप्रोप्रिएट डिनोमिनेटर। Got it? Okay. Now I am taking first number as a 12 divided by 4, that is 3.0. Understood? So in this way we have created the calculator using control flow statement, that is if and else. Okay, fine. So see here, this is calculator, this is check the number for even and odd. Okay, fine. This is calculator. This is for even and odd, and this is
for traffic light. Got it? Okay. So in this way हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कंडीशन सेटिस्फाई करवा के आगे चलना होता है. फाइन. कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वर्क करवाना हो. सो एट दैट टाइम वी आर यूजिंग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स. फाइन. ओके. So friends, do like, share and subscribe our YouTube channel. Okay, so in next lecture we are going to see loops in Python, that is for loop and while loop. Okay, fine. So before that, see here, ये मेरी नोट्स है जो मैं आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा, जहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्रोवाइड किया है आपको. ठीक है. सो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक है वहाँ पे क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हो इस नोट्स को. फाइन. सी हियर. सो इन दिस वे आई हैव क्रिएटेड दिस नोट फॉर यू. And these are the few questions that you need to solve for your practice purpose. ठीक है. चलो, thank you friends, thanks a lot.